मॉर्निंग 10th क्लास ਆਪਾਂ 6.5 स्टार्ट करनी है सिमिलर ट्रायंगल्स ਦਾ लास्ट एक्सरसाइज है ये तो जो 6.5 है दैट इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम और थ्योरम्स ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं बट एक ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾइथागोरस थ्योरम ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ पाइथागोरस थ्योरम है ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ PGT पाइथागोरस थ्योरम सब तो पहला ये किहदे ते लगदी है किहदे ते लगदी है ये तुहाडे कोले राइट ट्रायंगल दे विच है ना राइट ट्रायंगल दे विच तुहाडे कोले की हुंदा है सब तो पहला तुहाडे कोले एक 90 डिग्री दा एंगल हुंदा है 90 डिग्री दा एंगल जिहड़ी ऑपोजिट साइड हुंदी है उहनूं असीं की कहने हैं हाइपोटेन्यूज एंड जो हाइपोटेन्यूज हुंदा है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड उस तो बाद जिथे खड़ी है ट्रायंगल वो की बन जाता है बेस और जी बची हुई चीज़ है वो की बन जाता है तुहाडे कोले आल्टीट्यूड या तुसीं इहनूं की कह दिंदे आ परपेंडिकुलर है ना तो जेकर मैं नाम रखदा ABC तो दिस ABC ट्रायंगल इज राइट एंगल एट B इन विच AC is hypotenuse, BC is base and AB is perpendicular. Now पाइथागोरस थ्योरम की है पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि hypotenuse square is equal to sum of square of base and perpendicular. मतलब जेकर असी हाइपोटेन्यूज का स्केयर कर दिए वो किहदे इक्वल आऊगा बेस दे स्केयर प्लस परपेंडिकुलर दे स्केयर दे इक्वल आऊगा तो ये तुहाडे कोले पाइथागोरस थ्योरम है इस पाइथागोरस थ्योरम ते ही बेस्ड साडे कोले 6.5 है तो 6.5 दा असी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं की है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਟਰਮਿਨ ਵਿਚ ਆਫ them ਆਰ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਗੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਰਾਈਟ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਲਓ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਟ A is equal to 7 cm B is equal to 24 cm and जो C है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ that is equal to 25 cm say ਠੀਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ the largest one ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ C which is equal to 25 cm ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ C square is equal to 25 square ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 625 ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ A square plus B square मतलब 7 square plus 24 स्केयर तो कितना आ गया तुहाडे कोले ये आ गया 49 ये कितना आ गया 576 ते जो तुसीं इन्हां नूं ऐड करोगे तो ये तुहाडे कोले कितना आंदा पिया 625 625 तो नहीं आंदा पिया चेक कर लैने 625 तो नहीं आ रहा लो हाँ ये तो बिल्कुल 625 ही आ रहा ठीक है तो हुण तुसीं देखिया कि की होया दो साइडां दा जिहड़ा स्केयर सी उन्हां दा सम सी ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਹੇਅਰ C square is equal to A square plus B square ठीक मतलब ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ और जी लार्जेस्ट साइड होंगी है वही थोड़े को की होंगे हाइपोटेन्यूज है तो क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल सो गिवन ट्रायंगल इज और द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल सो गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल as पाइथागोरस थ्योरम is applicable here and उस तो बाद तुसीं की करोगे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल गई हुई तुहाडे कोले
हाईपोटेन्यूज की वैल्यू तुहाडे कोले 25 निकल गई हुई है, उन्होंने भी तुसी अलग तो नीचे लिख देना है। देयरफॉर इट्स हाईपोटेन्यूज कितना आ गया तुहाडे कोले 25। हुण ਇਹਦਾ क्वेश्चन नंबर 2, ਇਹਦਾ क्वेश्चन नंबर 3, ਇਹਦਾ क्वेश्चन नंबर 4 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਮ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ c ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਐਜ਼ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੀਅਰ, ਸੋ ਗਿਵਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ PQR is a triangle right angle at P and M is the point on QR such that PM perpendicular to QR। शो की करना है PM square is equal to QM into MR। तो इस स्टेटमेंट पढ़ के सानू पता लग गया है कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है जो वड्डी वाली ट्राइंगल है PQR किथे एट P ते, ठीक है। इस तो इलावा PM भी परपेंडिकुलर है QR ते, गिवन हो गया। तो सानू ये कुछ शो करना है, तो असी गिवन ते जो टू प्रूव है वो लिख लेने हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रूफ दे विच असी किद्दां करांगे पाइथागोरस थ्योरम दे नाल, ठीक है। तो तुहाडे कोले PM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू QR, इहदा मतलब M ते 90 का एंगल बन रहा है और दूसरे साइड भी की बन रहा है 90 का। तो पहला असी PMQ ट्राइंगल लवांगे। तो इन राइट ट्राइंगल नाम की PMQ, हुण 90 का एंगल M ते बनता हुआ है ना। इहदे सामने वाली साइड देखो कौन है PQ, ये तुहाडे कोले की बन गया हाइपोटेन्यूज। तो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਗਾਣਾ, ਅਪਲਾਈਂਗ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਅਪਲਾਈਂਗ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। तो ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ PQ ਸਕੁਅਰ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ MQ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ PM ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ A ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ PM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ PM ਕੀ ਆ ਗਿਆ, PM ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PQ ਸਕੁਅਰ प्लस M, ओके प्लस नहीं माइनस MQ स्क्वायर। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। उस तो बाद की करो, तुहाडे कोले एक दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल भी बनती पई है, उहदे च भी लिख लो इन राइट ट्राइंगल कौन PMR। तो मैं M नू सेंटर ते तां लिया क्योंकि उहदे च 90 दा एंगल बनदा पिया। अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम की आऊगा तुहाडे कोले, पाइथागोरस थ्योरम इहदे च अप्लाई करो, तुहाडे कोले की आ जाऊगा। हुण इधर जिहड़ा 90 दे सामने साइड किहड़ी आ रही है PR, तो तुसी की लिखिया PR स्क्वायर which is your hypotenuse, this is equal to RM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। हुण इहदे चों भी PM दी वैल्यू कढ लो, लो इहदे चों भी PM दी वैल्यू कढ लैंदे आ। तो PM स्क्वायर की आऊगा, हुण असीं ध्यान नाल लिखदे, लास्ट टाइम प्लस लिखो हो गया सी PR स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर। लो इहनूं पाओ इक्वेशन नंबर 2। हुण की करो 1 ते 2 नूं ऐड कर लो, 1 प्लस 2, इधर कौन है PM, इधर भी कौन है PM, इधर भी PM स्क्वायर, इधर भी PM स्क्वायर, की बन गया 2 PM स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, पहले इन्हें लिख लेने हैं PQ स्क्वायर माइनस MQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर, ठीक है। हुण जो सानू चाहिए देखो, हुण असी वो चीज बनानी है, किद्दां बनूगी। एक चीज देखो, जेकर मैं PQ ते PR है ना, PQ ते PR इन्हां दोनों दा स्क्वायर किहदे इक्वल है, जो तुहाडे कोले एक वड्डी ट्रायंगल है RPQ या QPR
आर 90 डिग्री है ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो जो ये दो है इन्होंने दोनों का सम की हो जाऊगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ हाइपोटेन्यूज का स्केयर आर क्यू का स्केयर। तो इन्हों इकट्ठा करदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आ गया 2pm स्केयर। इन्होंने दोनों को इकट्ठा कर दिता तो ये बनाता सी आर क्यू स्केयर। और पिछला की बच गया पिछे आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ माइनस एम क्यू स्केयर माइनस आर एम स्केयर। ठीक हुण देखो इनू की करांगे हुण अगे हुण लगूगा थोड़ा जिहा अलजैब्रा। देखिए किदां आर क्यू है जड़ा दिस आर क्यू ये दो चीज़ों का सम है किहड़ा किहड़ा एक आर एम ते एम क्यू लिखदा इनू। लो मैं की कीता हुण जड़ा इधर 2 सी इधर अपने को पी एम स्केयर सी 2 इंटू पी एम स्केयर इक्वल टू आर क्यू नू मैं की कर दिता इत्थे लिख दिता आर क्यू दी थां ते आर एम प्लस एम क्यू होल स्केयर माइनस पिछे की आ रहा एम क्यू स्केयर माइनस आर एम स्केयर आ रहा। अच्छा हुण ध्यान नाल देखो जो मैं आ स्केयर खोला तो मेरे को की बन जूगा मेरे को बन जूगा आर एम स्केयर प्लस एम क्यू स्केयर माइनस 2 आर एम इंटू एम क्यू माइनस ओके तो प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस एम क्यू स्केयर माइनस आर एम स्केयर। हुण देखो कौन कौन कैंसल होंदा पिया एम क्यू ना एम क्यू आर एम देना आर एम आ 2 देना इधर 2 अल्टीमेटली साडे कोल रिजल्ट आ। तो इस तरीके दे नाल जो असी प्रूव करना सी पी एम स्केयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगी तो थोड़ा जा अलजेब्रा भी लगा और तुहाडे कोल रिजल्ट आ गया। हुण इसे एक्सरसाइज का जो इस तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो भी बिल्कुल इस तरीके दे नाल निकलना और 3 पार्ट्स और तुसी खुद करोगे। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे तुहानू। 4th क्वेश्चन विच है साडे कोले ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आइसोसेलेस। तो ठीक है आप एक राइट एंगल बना ली ठीक जिहदे विच एक एंगल किन्ने दा होगा साडे कोले 90 डिग्री का होगा तो नाल दी नाल उन्हें क्या होया राइट एंगल एट C। तो मैं इत्थे पॉइंट C रख देनी है ठीक है उस तो बाद इत्थे A रख देनी है इत्थे की रख देनी है B रख देनी है और जिहड़ियां दो साइड्स इक्वल ने आइसोसेलेस का मतलब की हुंदा है आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल है उन्होंने मैं शो कर दिता। ठीक है हुण बन गई किहड़ी ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी पहली गल तो क्योंकि AC इक्वल टू AB। ठीक है तो मैं की लिखा ये इन राइट ट्रायंगल ABC की है AB AC इज इक्वल टू BC। क्यों इट्स गिवन that this triangle is isosceles triangle। ठीक है उस तो बाद क्योंकि because given triangle is right angled at C so की होगा पाइथागोरस थ्योरम लग जूगी applying पाइथागोरस थ्योरम applying पाइथागोरस थ्योरम तुहाडे कोले की आ गया हुण देखो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज हुंदा ठीक है जिथे खड़ी है वो की बन गया बेस जिहड़ा बच गया वो की बन गया तुहाडे कोले परपेंडिकुलर। तो लगाओ की आ गया तुहाडे कोले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। करिए वैल्यूज पुट हाइपोटेन्यूज कौन है हाइपोटेन्यूज है तुहाडे कोले AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कौन है BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है AC स्क्वायर। बट जो तुहाडे कोले BC है ते नाले AC है वो तो आपस दे विच की ने इक्वल ने। तो मैं की लिखा बट इहदे विच AC इज इक्वल टू BC क्यों एक तो लिखा है इट्स गिवन। ठीक तो ये की है तुहाडे कोले दिस इज गिवन तो तुहाडे कोले की आ गया तुहाडे कोले आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू हुण BC दी थां ते की लिखना
AC लिखना AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना बन गया 2 टाइम्स AC स्क्वायर। तो देखो ये ਤੁਸੀਂ प्रूव करना सी है ना, तो बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन बहुत बारी आंदा भी है, बहुत ध्यान दे नाल करना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ABC is an isosceles triangle, तो ABC isosceles triangle in which AC is equal to BC, AC is equal to BC, तो दो कट लगाते, प्रूव की करना, प्रूव दैट ABC is right triangle, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ right angle triangle ਹੈ, प्रूव करना है कि ਇੱਥੇ C ਤੇ 90 ਦਾ एंगल बनता ਪਿਆ। गिवन एक चीज हो रहा है कि गिवन की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AB स्क्वायर is equal to 2 times AC स्क्वायर, ठीक। ਹੁਣ जो गिवन ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ गिवन है as triangle ABC is an isosceles triangle, therefore ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AC is equal to BC, ਇਹ गिवन है, ठीक है। इनू असी इसे रिजल्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज करके प्रूव कर देना। also there is one more thing which is given also कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ AB square is equal to 2 times AC square, it's also given। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, AB square ਨੂੰ AB square ਰਹਿਣ ਦੋ is equal to ਜਿਹੜਾ AC square ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ 2 times AC square ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਖੋਲ ਲਿਆ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ AC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ AB square। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ AC ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ BC square plus ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ AC square। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ AB ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ AB ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, BC ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਬੇਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ AC ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੱਲੇ 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 ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਐਜ਼ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ here, so given triangle is right angle triangle, so very easy। जो पिछला तुसी क्वेश्चन कीता है ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਾਂ क्वेश्चन बनाता। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ triangle ABC is an equilateral triangle, तो मेरा नाम रख देने A B and C। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੈ, तो ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2A 2A and 2A। फाइंड ईच ऑफ इट्स आल्टीट्यूड्स, मतलब उन्होंने आल्टीट्यूड तो बनाया नहीं होया, सानू आल्टीट्यूड अपने कोल बनाना पैना, तो असीं बनाते हैं। सपोज कर लो असीं की कीता पॉइंट ए तो, ठीक है, एक आल्टीट्यूड ड्रॉ कीता किहदे ते बी सी ते उहदा नाम की रख दिता, उहदा नाम रख दिता AD। हुण जिहड़ा AD है दैट इज परपेंडिकुलर टू की BC and it's perpendicular as well as it's perpendicular, I can say that a perpendicular bisector है। मैं इस तरीके ना ड्रॉ किया कि जिहड़ा D है वो BC ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ BD ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ A ਔਰ CD ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ A ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ड्रॉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 90, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 90। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ triangle ABC is an ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ equilateral triangle, equilateral triangle, ठीक है जी, which implies जो ਇਹਦੀ साइड है AB is equal to BC is equal to CA is equal to 2A। ਇਹ ਜੋ given ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ draw की AD perpendicular to BC in such a way that
कि जो D की होवे, D is the midpoint of BC, midpoint of BC, which implies ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ BC ਹੋਊਗਾ that will be equal to ਕੀ ਕਵਾਂ 2 times BD, which implies BD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, BD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ BC by 2। BC ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ BC ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2A, 2A by 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ A, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਹ ट्रायंगल ले लो चाहे ये ट्रायंगल ले लो, दोनों की ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं ਇਹ वाली ट्रायंगल ले रही हैं, तो मैं की करा, मैं लिखिया इन राइट ट्रायंगल, केड़ा नाम की है ट्रायंगल दा, ADB, इन राइट ट्रायंगल ADB की लगाइए, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। तो हाइपोटेन्यूज कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, AB, ठीक है। बेस कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, BD, और परपेंडिकुलर कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, AD स्क्वायर। लो AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 2A, 2A स्क्वायर इज इक्वल टू BD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, BD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, स्मॉल a स्क्वायर। AD ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, AD ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ AD स्क्वायर, ठीक है। कितना बन गया है, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अच्छा जी, फर्दर कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੁਣ AD स्क्वायर किहदे कोल आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, है ना, विच इंप्लाइज ਹੁਣ AD कितना होगा, AD होगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ अंडर रूट स्क्वायर, दूसरे पास जाके अंडर रूट 3A स्क्वायर, जिन्हें मैं की लिखा अंडर रूट 3A। और वैसे तो असं प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि लेंथ है, केड़ी वैल्यू कंसिडर करांगे, पॉजिटिव, अंडर रूट 3A, एक ही आ गया ਇਹਦਾ आंसर। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ जो AD है एक अल्टीट्यूड है, ਉਹਦਾ आंसर कितना हैगा अंडर रूट 3A। सिमिलरली कोई बच्चा की करता है, सिमिलरली कोई बच्चा इधर ਨੂੰ अल्टीट्यूड ड्रॉ कर ਲੈਂਦਾ है, ਉਹਦਾ भी आंसर की आऊगा, सेम आऊगा, ठीक है। चाहे जिस तरीके ਨਾਲ मर्जी करो, 3 अल्टीट्यूड्स आने और 3 अल्टीट्यूड्स की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ, अंडर रूट 3A, सेम तरीके ਨਾਲ। 7 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, prove that the sum of the squares of the sides of the rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। तो ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ABCD ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ rhombus ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ diagonals ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AC ਤੇ BD, ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, they are right bisector of each other, ठीक है। तो जेकर राइट बाइसैक्टर है, मतलब सारे पासे की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ AC ਐਂਡ दूसरा ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ BD, कौन ने, डायगनल्स के डायगनल्स ऑफ rhombus ABCD बाइसेक्ट, और मैं कमा राइट बाइसेक्ट each other at O। at O, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਬਾਈਸੈਕਟ ਐਟ O, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। तो which implies angle AOB, this is equal to angle BOC। ਸਾਰੇ इक्वल क्यों, क्योंकि सारे 90 ਦੇ ਨੇ, equal to COD
इज इक्वल टू एंगल DOA सारे दे सारे किहदे 90 डिग्री दे। ठीक है, अच्छा जी, नाल दी नाल क्योंकि बाइसैक्टर भी ने विच इंप्लाइज तुहाडे कोले की होगा AO OC दे इक्वल होगी, AO OC दे इक्वल, तां इन्हां नूं मैं सेम कट लगाया है। एंड दूसरे पासे BO किहदे इक्वल होगा तुहाडे कोले OD दे की होगा तुहाडे कोले इक्वल होगा। ठीक, उस तो बाद आ जाओ हुण असीं की करना, असीं एक राइट ट्रायंगल ले लैंदे आ। हुण ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਨ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ AOB, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੌਣ ਹੋਈ AB, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ है ना। की लगाइए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तुहाडे कोले है AB स्क्वायर इज इक्वल टू जेड़ा हुण बेस है तुहाडे कोले OB मान लैंदे हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर असीं मान लैंदे हैं OA स्क्वायर। अच्छा हुण जेड़ा OB है, ठीक है, वो किहदा हाफ है, वो BD दा हाफ है। की लिखा हाफ ऑफ BD एरा स्क्वायर प्लस जेड़ा OA है वो हाफ है, हाफ ऑफ AC स्क्वायर। हुण तुहाडे कोले की होया 1/2 दा स्क्वायर 4 1/4 हो गया, इहदा भी 1/4 हो गया। ठीक है, तो तुहाडे कोले की आ गया 4 तुसी दूसरे पासे लिआंदा 4 AB स्क्वायर की हो गया तुहाडे कोले BD स्क्वायर हो गया प्लस AC स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल दे विच तुहाडे कोले एक रिजल्ट आ गया। सिमिलरली बाकी ट्रायंगल्स दे विच भी की होगा, बाकी ट्रायंगल्स दे विच हुण इहदी बाहर वाली साइड किहड़ी है BC स्क्वायर। हुण सिमिलरली मैं बाकियां वास्ते भी लिख सकदे हां, बाकियां वास्ते भी जेकर तुसीं एक दे विच होर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तां BC तुहाडे कोले की बनूगा, अपना हाइपोटेन्यूज बनूगा, तो तुसीं उत्थे भी तुहाडे कोले ये आ जाऊगा 4 टाइम्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, हुण ये भी ट्रायंगल होगी, ये भी ट्रायंगल होगी। अगली ट्रायंगल दे विच की होगा हाइपोटेन्यूज कौन है उहदे विच, उत्थे आ जाऊगा 4 टाइम्स CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फर्दर आ जाओ, फर्दर केड़ी ट्रायंगल है तुहाडे कोले और उहदी बाहर वाली साइड जेड़ा उहदा हाइपोटेन्यूज है वो है तुहाडे कोले AD स्क्वायर, तो कितना आ गया तुहाडे कोले भी BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। इनू पाओ इक्वेशन नंबर 3, इनू पाओ इक्वेशन नंबर 4। लो हुण अल्टीमेटली असीं की कीता, देखिए हुण असीं की करांगे, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड कर दांगे 1 + 2 + 3 + 4 सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड कीता, तो साडे कोले की आ गया, साडे कोले आ गया 4 टाइम्स, बाहर निकालना सारिਆਂ ਨੂੰ 4 लगा होया, अंदर की आंदा पिया तुहाडे इत्थे आ रहा तुहाडे कोले AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा जी 4 टाइम्स की आ जाएगा, 4 टाइम्स की आ रहा है तुहाडे कोले BD स्क्वायर प्लस नाल की आ जाऊगा AC स्क्वायर। ये भी 4 टाइम्स आ रहा है, मैं इकट्ठा 4 बाहर निकल कर देता, 4 देना 4 कैंसिल हो गया। तो देखो AB BC CD ते AD कौन ने, ये रोम्बस दियां बाहर वालियां साइड्स है, तो बाहर वालियां साइड्स दा स्क्वायर किहदे इक्वल आ BD ते AC, BD दा स्क्वायर प्लस AC दा स्क्वायर। ओके, BD कौन है, एक डायगोनल है, AC की है एक डायगोनल है, यही उन्हें प्रूव करने क्या सीगा। ठीक है, बहुत सौखा है, बहुत सौखा ते बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान ना करियो। तो 8th क्वेश्चन दे विच तुहाडे कोले एक डायग्राम दिता होया इन दिस फिगर O इज अ पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, जिहदे विच OD की है तुहाडे कोले परपेंडिकुलर है BC दे। ठीक है जी, परपेंडिकुलर BC दे। इस अलावा OE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AB। शो दैट तुहाडे कोले की है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू what AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस
ई स्केयर। हुण फर्स्ट रिजल्ट मैं तुहानूं फर्स्ट वाला करांदे हैं, ठीक है। हुण देखो इत्थे OA OB OC है, तो नहीं वो ज्वाइन होए पहला तो उन्होंने ज्वाइन कर लो, OA नूं ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। OA नूं ज्वाइन कर लिया, सिमिलरली OC नूं भी ज्वाइन कर लो, तो OB नूं भी ज्वाइन कर लो। लो सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज्वाइन करता, ठीक है। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ट्रायंगल ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इधर भी 90 का होगा, इधर भी 90 का होगा, इधर भी 90 का होगा, ठीक है। तो सब तो पहला असं ट्रायंगल ली, देखिए OFA की ਲਈ मैं राइट ट्रायंगल ली, ठीक है। ਹੁਣ 90 ਦਾ एंगल कितने बनता पाया, पॉइंट F ते, पॉइंट F ते जो 90 ਦਾ एंगल बनता पाया, सामने ਕਿਹੜੀ साइड आई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, OA साइड आई, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और देखिए की बनता। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम असी एक ट्रायंगल छड़ के अगली ट्रायंगल दे विच भी लगा देनी है, ठीक है। जो असी किहड़ी ट्रायंगल दे विच लगावांगे, OBD दे विच लगावांगे, उस टाइम की होगा साडे कोले। सिमिलरली फॉर राइट ट्रायंगल किहड़ी BOD एंड फिर एक छड़ दो अगली लो, एंड ट्रायंगल COE। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ 90 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, OB, तो ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ OB ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, BD ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, प्लस OB ਸਕੁਅਰ, पर बेस प्लस परपेंडिकुलर ਦਾ ਸਕੁਅਰ, बेस ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस परपेंडिकुलर ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ COE ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, OC ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CE ਸਕੁਅਰ प्लस OE ਸਕੁਅਰ, ठीक है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 2 3, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। तो जो तुसीं इन्हां तिन्नां नूं ऐड करदे पे हैं, लैफ्ट साइड ते जो ऐड करके आया है ना, राइट साइड ते की आंदा पिया, एक तुहाडे कोले आंदा पिया AF स्क्वायर नाल प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। हुण तुहानूं रिजल्ट दे विच की चाहीदा है, देखिए रिजल्ट दे विच तुहानूं चाहीदा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, नाल की चाहीदा माइनस OD स्क्वायर, OD इधर पिया होया, इहनूं चुक के इधर ले आओ, नाल माइनस की चाहीदा OE भी चुक के इधर ले आओ, OF उहनूं भी चुक के इधर ले आओ। तो असीं की करदे हां, विच इंप्लाइज साडे कोल आंसर आ गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हुण सब तो पहला की कीता, जिहड़ा OD है उहनूं चुक के लैफ्ट साइड ले आंदा, OD स्क्वायर माइनस दा हो गया, माइनस उस तो बाद OE नूं चुक के लैफ्ट साइड ले आंदा, फिर माइनस OF नूं चुक के लैफ्ट साइड ले आंदा। इधर कौन कौन रह गया, राइट साइड ते AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके नाल असीं फर्स्ट पार्ट की कीता, आसानी दे नाल सॉल्व कर लिया, ठीक। अच्छा जी, हुण जिहड़ा तुहाडे कोले इहदा सैकेंड पार्ट है, AF स्क्वायर प्लस कित्थे है तुहाडे कोले AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव किया करना है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट तुसीं खुद करोगे, ठीक है, बहुत सौखा है, बड़े आसानी ना हो जाना। क्वेश्चन नंबर 9th, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. चलो साडे कोले असी सपोज कर लेने आ एक वॉल है, ठीक है। ये तुहाडे कोले की है, एक वॉल। तो दिस इज योर वॉल और ये तुहाडे कोले की है, ग्राउंड, ठीक है। हुण जिहड़ा विंडो है, विंडो कित्थे स्टार्ट हो रहा है, इत्थे मान लैनी है मैं, इत्थे तुहाडे कोले पॉइंट B है, B ते तुहाडे कोले की है, विंडो है, B तो विंडो स्टार्ट हुंदी पई है। हुण इत्थे की लगा होया, इत्थे एक लगा होया तुहाडे कोले लैडर, ठीक है। तो इत्थे लगा है तुहाडे कोले लैडर, और लैडर कितना है तुहाडे कोले 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक। और जिहड़ा रीचेस द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, और
कितना है विंडो जिहड़ा विंडो है वो ग्राउंड तो कितना दूर है तुहाडे कोले ये 8 मीटर है ठीक है हुण की फाइंड करन नूं कहंदा पिया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फुट लैडर दा ये पिया एंड बेस ऑफ द वॉल ओके तो असी की करना है ना दोनों दे विच की फाइंड करना असी डिस्टेंस फाइंड करना है तो इनू मैं मान लेने ए इनू मान लेने मैं बी इन बी उपर चला गया चलो इनू मान लेने असी सी हुण जिहड़ी वॉल है वो हमेशा बेस दे नाल किन्ने दा एंगल बनाऊगी तुहाडे कोले 90 ਦਾ एंगल बनाऊगी है ना तो अल्टीमेटली जो तुसीं इहनूं ध्यान दे नाल ड्रॉ कीता तो तुसीं देख रहे हो तुहाडे कोले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनदी भी है राइट एंगल ट्रायंगल दे विच असीं किहड़ी थ्योरम लगावांगे पाइथागोरस थ्योरम ठीक है पाइथागोरस थ्योरम दे विच 3 वेरिएबल हुंदे ने जे 2 दित्ते है तो तीसरा असीं आसानी नाल कढ लवांगे ठीक तो इहदे विच तुसीं की करोगे कंसीडर कर लो कंसीडर ए बी be the ladder and also जो AB है that is equal to 10 सेंटीमीटर ठीक है एंड नाल एक होर BC be the wall एंड जो BC की वैल्यू है that is equal to 8 मीटर ठीक हुण तुहाडे कोले जिहड़ी ट्रायंगल है ABC वो की है इज राइट ट्रायंगल एट किहदे ते सी ते ठीक तो इहदे विच की लाइए सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम की आ जाऊगा तुहाडे कोले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हुण ध्यान नाल देखो सी ते 90 दा बनदा होया तो सामने कौन होया हाइपोटेन्यूज ए बी बेस ए सी ते नाल दी नाल तुहाडे कोले परपेंडिकुलर कौन है बी सी वैल्यूज पुट करिए हुण ए बी दी वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले 10 स्क्वायर ए सी दी वैल्यू तुहानू नहीं पता वो निकालनी है तुसीं प्लस बी सी दी वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले 8 तो कितना आ गया तुहाडे कोले 100 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 64 तो इनू फर्दर सॉल्व कर लो कि आ गया तुहाडे कोले AC नू एक पासे ले आओ AC स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 36 तो AC कितना आ गया तुहाडे कोले इट्स √36 कितना होगा प्लस माइनस 6 केड़ी वैल्यू कंसीडर करोगे तुसी प्लस दी विच इंप्लाइज जो AC है दैट इज इक्वल टू 6 एदा मतलब जो ये लैडर सी लैडर दा फुट ते वॉल दा जिहड़ा बेस है इहदे विच डिस्टेंस कितना आएगा तुहाडे कोले 6 नाल यूनिट भी लिख देने मीटर क्वेश्चन नंबर 10th देखो क्वेश्चन नंबर 10th दे विच तुहाडे कोले की है a guy wire attached to the vertical pole of height 18 meter is 24 meter long एक पोल है ठीक है पोल कौन है BC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है पोल ਦੇ ਨਾਲ पोल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਰੈਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਗਾਇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ठीक है और तार कितनी लंबी है 24 मीटर लंबी है और एंड हैज अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड ठीक है स्टेक मतलब एक मतलब हुक टाइप इत्थे पॉइंट ए ते पई है उस तो बाद हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो द वायर विल बी की होवे टाइट होवे ठीक कहंदा पिया देखो पोल है पोल तो कितनी दूर तुसी एक की करो एक किल लाओ या स्टेक लाओ या कोई एक कुंडी भी लाओ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ ਇਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ ਪੋਲ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਇਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AB और यदि वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर अच्छा जी हाइट ऑफ पोल पोल की हाइट कितनी है BC जी वैल्यू कितनी है 18 ओके मीटर 18 मीटर ठीक और तारे को जो ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल
ACB C ਤੇ 90 ਦਾ therefore ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਵਾਂ applying Pythagoras theorem ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ C ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ AB ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਸਕੁਅਰ is equal to base square plus perpendicular square ਲਓ ਜੀ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਹੈ AB ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ ਅਸੀਂ AC ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ perpendicular ਹੈ that is BC square values put ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24 square is equal to ਹਾਂਜੀ AC ਨਹੀਂ ਪਤਾ as such BC ਕਿੰਨਾ 18 square जो 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 576 which is equal to AC square ਅੱਛਾ ਜੀ 18 ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 324 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ which implies ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ AC ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 576 324 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 252 ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਾਉਂਗੇ 252 ਦਾ that comes out to be plus minus 6 under root 7 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 6 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 7 ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ तो ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ 6 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 7 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਚਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ तो ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ